हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है काफ़ी डिसेंट वीडियो है। 2 ही दिन पहले अपलोड किया है। एक चाइनीज़ यूट्यूबर ने जब अर्नब गोस्वामी की स्पीच जो है, जो जिसके बारे में बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में दोबारा देखेंगे उसको। लेकिन वो जो है चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके जब चाइनीज़ लोगों को दिखाया उस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि मतलब चाइनीज़ लोगों के क्या रिएक्शन थे। और आपको डाउट होगा कि सच में चाइनीज़ ही ये कमेंट कर रहे हैं इंडिया के बारे में। लेकिन आपको बता दूं कि 100% ऑथेंटिक है और चाइनीज़ ही ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं इंडिया के बारे में। तो ये वीडियो हम देखेंगे और चाइनीज़ यूट्यूबर का क्या रिव्यू था वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। कमेंट सेक्शन में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 大家好，欢迎收看这期节目，咱们直入主题，先看一个短片。 You lecture me as an American to an Indian on values, and Professor You say that Kupchan. this is about the West being weak. I don't Professor think so. Kupchan, allow me. What you're seeing is the West organize solidarity against No, Russia. no, 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 Two-thirds West- of the nations no, no, are no, coming no, no, together against Professor- Russia. Professor We're Kupchan. seeing serious sanctions Professor- against Russia. Yeah. Most of the world Now- is coming together now, against Professor- Russia. India should get off the fence. Okay, now I'll tell you something, Professor Kupchan. And I hope that you will allow me a decent response, and then Ambassador Pawan Verma will respond to you. I see John wants to respond to you. First, I'd like to. First of all, with the greatest of respect, Professor Charles Kupchan, you have no moral standing to talk. You are in no position, you as in America, America is in no position to pretend to be the guardian of democracy and human rights. You are the worst perpetrator of atrocities. You, in Barack Obama in 2011, intervened in a nascent Libyan civil war, using the NATO and Arab League partners, prolonging the war for 1 decade. You launched armed conflict in at least 6 countries. Iraq, Syria, Yemen, Somalia, Niger. You carry out drone strikes. You've killed thousands with your drone strikes. You run Guantanamo Bay. But since I listened to you till you completed, you must listen to me. You must listen to me, sir. Sir, you must listen to me. You're dealing with India. We're a big country. We're not your satellite state. So don't lecture us on what we need to do. We're going to look out for yourself. You use the phrase geopolitical expediency in place of values. You lecture me as an American to an Indian on values, and you say that we are acting in geopolitical expediency. Let me allow me to complete. Allow me to complete, sir. Allow me to complete. Where were your values? Where were your values? Where were your values when in the first 2 months of the US invasion of Iraq, 7,186 Iraqi civilians were direct casualties of the war? Was that your expediency? Was that expression of your values? हे मोम, मेरा कहना है कि मैंने इंडियन ब्रदर्स को कभी इतना पसंद नहीं किया जितना मैं आज करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे किसी अमेरिकी प्रोफेसर या स्कॉलर को नाराज़ करना, क्योंकि वह एक प्रोफेसर और स्कॉलर है तो वो बहुत रीजनेबल है और पावरफुल है और उसके कई रिलेशंस भी हैं, राइट? मतलब पूरी वीडियो को एडिटिंग प्रोसेस तो देखो। क्या लोगों ने ये जाना कि यूएस में इस प्रोफेसर को अभी भी प्रोफेसर कहा जा सकता है? जब आप छात्रों के सामने पोडियम पर खड़े होते हैं और बात करना शुरू करते हैं, तो क्या आप एक व्यक्ति के रूप में योग्य या अयोग्य महसूस करते हैं? अगर अमेरिकन वैल्यूज़ की बात करें, क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है कि अमेरिकन वैल्यूज़ ने दूसरे देशों में कितनी आपदा लाई है, राइट? बिल्कुल नहीं। अरे क्या आपके पास इराक और सीरिया को देखने का साहस है? तुमने क्या भयानक काम किया? क्या आप में इसका सामना करने की हिम्मत है? और ये यूएस के पूर्व विदेश मंत्री किस तरह की चीज़ है? हाल ही में उनका निधन हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसकी कीमत इराक में 5 लाख बच्चों के लॉस के बराबर थी। मैं सोच रहा हूँ, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, क्या आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि तुम्हारी मौत इसके लायक है? वह ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन वह इराकी बच्चों के सामने ऐसा कह सकता था। अब मानव स्वभाव कहाँ है? मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। और उनमें अभी भी ऐसे बहुत हैं बुद्धिहीन राजनेता जो अभी भी यूएस के बारे में अंधविश्वासी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार के अपने बच्चों को वही दुर्भाग्य भुगतना होगा, तो जब आप दोबारा बात करेंगे तो मैं आप पर विश्वास करूँगा, अन्यथा आप बिल्कुल विलन हैं। जहाँ तक चाइना का सवाल है, हम भारत को यूएस के साथ नहीं जाने दे सकते। ये वह लक्ष्य है जिसे हमें हासिल करना है, इसलिए भारत में हमारी प्रगति का बहुत स्वागत है। हमारे विदेश मंत्री अब उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडिया गए हैं।
इसका मतलब है कि जब भी संभव होगा हम चाइना और इंडिया के बीच के संबंधों को करीब लाएंगे और इंडिया को कभी भी यूएस के पास नहीं जाने देंगे। यदि इंडिया यूएस के अधीन आता है तो यूएस बेईमान होगा। जब रशिया की रियासत बड़ी मदद नहीं कर पाती है तो वे चाइना को नियंत्रण करने के लिए यूरोप को लामबंद करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि इस समय आशियन दबाव ना झेल पाए, इसलिए यूएस की रशिया के समान चाइना के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बहुत बड़ी संभावना है। दूसरे शब्दों में इसलिए हम इंडिया को बहुत विनम्र लगते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में सांसद के निचले सांसद के अध्यक्ष ने इस बार एक और रिफ्लेक्शन प्लान रद्द कर दिया। उन्होंने रद्द क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे रशिया पर प्रतिबंध लगाने की यूएस की योजना का पालन करने के लिए भारत को राजी नहीं कर सकते। वे भारत को मनाने में असमर्थ थे। वहां जाने का कोई मतलब नहीं था और इसलिए ब्रिटेन ने ही यात्रा रद्द कर दी। और फिर चाइना के विदेश मंत्री योजना के अनुसार इंडिया पहुंचे और हमारी यात्रा शुरू की। इसलिए इस संबंध में मैं जो बात व्यक्त करना चाहता हूं वह यह है कि जब तक हम इसे अच्छी तरह से संभालते हैं तब तक इंडिया के यूएस में पूर्ण रूप से स्थानांतरित होने की संभावना लगभग शून्य है। तो सबसे पहले एना चेन ने लिखा है कि इंडियन लोग ये डिबेट देख के बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे और जर्नलिज्म की ऐसी हाई क्वालिटी ने चाइनीज लोगों का भी दिल जीत लिया। आई लाइक दिस होस्ट सो मच। उन्होंने जो बोला वो दुनिया के 90% लोगों की दिल की बात है। उसके बाद काइचैक चुन ने लिखा है कि किसी भी चाइनीज टीवी होस्ट में इतना ऑडेसिटी, करेज और राइटियसनेस नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो किसी भी चाइनीज रिपोर्टर के में उतना दम नहीं कि वो यूएसए को उसके मुंह पे रख के झाड़ दे। एक देश का मीडिया ही उसका बैकबोन होता है और इंडिया के पास वो है। उसके बाद किनवाई एनजी ने लिखा है कि ये बहुत रेयर है जब किसी रिपोर्टर को ऐसे खुलेआम क्लियर कट फैक्ट्स बताते देख रहा हूं। कोई मुझे कुछ भी कहे, आई हैव टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। ही हैज इंडीड स्पोकन द ट्रूथ। उन्होंने वो सच कहा जो कि मेजोरिटी देश कहना चाहते हैं, जिन्होंने इन इंपेरियलिस्ट यूएसए के हाथों सफर किया है। उसके बाद सी नाइचुन ने लिखा है कि आज मैंने ये डिबेट देखा और इसको मैंने काफी एंजॉय भी किया। अब तो मुझे इंडिया बहुत पसंद आने लगा है। उसके बाद एम क्वीन ने लिखा है कि ये सच में अनबियरेबल है कि अमेरिकन्स हमेशा खुद को मॉरल हाई ग्राउंड्स में रखते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसा या फिर इससे भी कई ज्यादा बदतर चीजें की ना हो। और हालांकि इस इंडियन होस्ट ने इतने सारे एविडेंसेस दिखाए, लेकिन फिर भी इन अमेरिकन स्कॉलर्स की बेशर्मी तो देखो, वो फिर भी रिफ्यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद लीन वॉल्टर ने लिखा है कि इंडिया इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और चाइना को इससे सीखना चाहिए। होस्ट ने बिल्कुल वही कहा जो उसके दिल में था। थैंक्स कि इंडिया की जो पोजीशन है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके, वो इंडिया ने खुद तय किया है और रशिया के साथ उनकी रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। उसके बाद ऑड्रे ने लिखा है कि इंडिया ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स के सामने झुकी हुई है और उनके इशारों पे चल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन होस्ट ने खुले आम सारे टिपिकल और क्लासिक यूएसए के क्राइम्स को उनके सामने गिनवा दिया और उनकी पोल खोल के रख दी। इंडिया हैज सच अमेजिंग पीपल। इंडिया सच में एक बड़ा और ताकतवर देश है। उसके बाद मेलिस ने लिखा है कि हम सारे चाइनीज दिल की गहराई से इस होस्ट को एक बड़ा सा लाइक देते हैं। उसके बाद आई एम ब्रदर जियान ने लिखा है कि देयर इज अ रीजन कि इंडियंस को बहादुर कहा जाता है। आई अपलॉड हिम। उसके बाद लेजी ने लिखा है कि इनको सुनने के बाद आई एम स्पीचलेस। हमारे देश के सो कॉल्ड स्कॉलर्स तो अमेरिका के सामने अपना मुंह भी ठीक से खोल नहीं पाते। उसके बाद फनी चैन ने लिखा है कि इट्स बेटर टू बी अ कंट्री जिसका एक बैकबोन हो और जो स्वतंत्र हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फकिंग स्लेव। लॉन्ग लिव इंडिया। उसके बाद डायरेक्टर तियान ने लिखा है कि टू बी ऑनेस्ट इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और इसीलिए इंडिया बहुत एक्सपीरियंस्ड है सही और गलत को परखने में, विच मेक्स मी ऑस्ट्रक। अच्छे प्रिंसिपल्स को अपनाना तो आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है और इंडिया ने वो कर दिखाया है। उसके बाद ई चू ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा ताकतवर देश है कि उसके पड़ोसी देश उससे डरते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया और रशिया के दोस्ती के बारे में बात करें तो दोनों ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। These two brothers deserves all the praises। इन दोनों भाइयों को दिल से रिस्पेक्ट है। उसके बाद ईसाया ने लिखा है कि इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सेंसिबल है और इसका एग्जाम्पल और भी एक बार इस होस्ट को देख के मिला। ही स्पीक्स रैशनली विथ नो रिस्ट्रेंट्स। अब बताओ चाइना में कितने ऐसे दलेर लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हैं? शायद कोई भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका ही कमेंट का एक हिस्सा है जो उन्होंने कहा। उसके बाद क्विंग फेंग सियाओ ने लिखा है कि जरा हमारे देश के रिपोर्टर्स को तो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, मुंह ही नहीं खुलता। दिस इंडियन होस्ट रियली हिट द नेल ऑन द हेड और अमेरिकन्स की बोलती बंद कर दी। तो दोस्तों आज मैं कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।